Good day, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 11th physics. We are studying here some questions, multiple choice questions. So, first question of this video is: out of the following pairs, which one does not have identical dimensions? इन सभी pairs में किस पेयर की जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, सेकंड है हमारा वर्क एंड टॉर्क, थर्ड है हमारा डेंसिटी एंड सरफेस एनर्जी, एंड फोर्थ है हमारा प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, दैट इज प्रेशर इनटू स्ट्रेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट? इनमें से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? पहला है हमारा प्रेशर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सही नहीं है। दूसरा है हमारा प्रेशर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी नहीं है। थर्ड है हमारा प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू वॉल्यूम इनटू टाइम, इसे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया। हमको पता है पी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है, तो डी भी रॉन्ग है, ए और बी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू वॉल्यूम इनटू टाइम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, that is dimensional, the dimensional formula for impulse is same as dimensional formula for number 1 acceleration, number 2 force, number 3 momentum, number नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो इसका आंसर है हमारा बी फोर्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन number 1 rotation of earth on its axis, number 2 earth's orbital motion around the sun, number 3 है vibration of cesium atoms, and number 4 है oscillation of quartz crystal। तो इसका ऑप्शन है vibration of cesium atoms is the right answer, means option C is correct। Now let's see question number 5, which of the following system of units is not based on unit of mass, length and time alone? इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट केवल मास, लेंथ और टाइम पर ही बेस्ड नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एसआई, दूसरा है एमकेएस, तीसरा है एफपीएस एंड फोर्थ है हमारा सीजीएस। तो इसका सही आंसर है एसआई, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Error due to non-removal of parallax between pointer and its image is in case of magnetic compass needle causes first instrumental error, second persistent error, third personal error and next हमारा है random error। So इसका आंसर है हमारा that is option C, that is personal error। Okay, so option C is correct। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, instrumental error can be minimized by number 1 taking a large number of readings, number 2 using different accurate instruments for the same reading, third option adjusting the zero of the instrument, and fourth option maintaining the temperature of the surrounding area। so इसके लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, that is using different accurate instrument for the same reading। so option B is correct। Question number 8, the magnitude of the difference between mean value and each individual value is called, first is absolute error, second is error in reading, third most probable error, and fourth is true error। so इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, the difference between the true value and measured value is called, फर्स्ट है मिस्टेक, सेकंड है एरर, थर्ड है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड फोर्थ है फॉल्ट। सो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज एरर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
If the pointer of the voltmeter is not exactly at the zero of the scale, then the error is called number one instrumental error, number two systematic error, number third personal error, and number four random error. So इसका ऑप्शन है हमारा B करेक्ट है, that is a systematic error. So option B is correct. क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन B करेक्ट है. Now question number 11. Zero error of an instrument introduces. इसमें थोड़ा सा यहाँ ये ABCD इस टाइप से दिया हुआ है, ये गलत है, ये कुछ नहीं है. Zero error of an instrument introduces. अब इसमें ये नहीं पता है कि ABC क्या है. मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको. इसका आंसर होगा सिस्टमेटिक एरर. SYSTEMATIC सिस्टमेटिक एरर. ओके, ये जो भी ऑप्शन है, चाहे ए है, बी है, सी है या फिर डी है, जो भी है व्हाट्सएवर. ठीक है, तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक एरर. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा. एक्सीडेंटल एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय नंबर वन टेकिंग ओनली वन रीडिंग, number two taking a small magnitude of the quantity, number third selecting the instrument with the greater least count, and next option selecting instrument with the smallest least count. So इसका option D correct है, that is selecting instrument with the smallest least count. Option D correct है. Question number 13. Constant error can be caused due to number one faulty constructions of the instrument, number two wrong setting of the instrument, third is lack of concentration of observer, and fourth is wrong procedure of handling the instrument. So इसका option A correct है, that is faulty constructions of the instrument, means option A is correct. Faulty construction of instrument. Question number 13 का option A correct है. Now come to the question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड. पहला ऑप्शन सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर टू अनसर्टेन नंबर, नंबर थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स और द सिग्निफिकेंट नंबर, एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो इसका आंसर है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. Now, question number 15. Dimensional equation cannot be used. Number 8. First है हमारा to check the correctness of the physical quantity. Second है to derive the relation between different physical quantities. Third option है to find out the constant of proportionality, which may be a pure number. And fourth option है to change from one system of units to another system. So इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, that is to find out the constant of proportionality which may be a pure number. ठीक है, इसके लिए हम डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फर्स्ट है हमारा एंगल, सेकेंड है हमारा स्ट्रेन, थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड फोर्थ है हमारा डेंसिटी. सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज डेंसिटी. 16th का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है checking the correctness of physical equation using the method of dimensions is based on. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा equality of inertial frame of reference, second है the type of system of units, third है the method of measurement, fourth the principle of homogeneity of dimensions. So इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन. ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा. ए यूनिटलेस क्वांटिटी
Number one always has a non-zero dimension. Number two may have a non-zero dimension. ऑप्शन सी हमारा नेवर हैज अ जीरो डायमेंशन. ऑप्शन डी हमारा हैज नो डायमेंशन. सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, हैज नो डायमेंशन. ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा. इट इज. ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा. In cesium atomic clock dash is used cesium 122 atom, cesium 132 atom, cesium 133 atom and cesium 134 atom. So इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज cesium 133 atom means ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ लेट्स proceed to question number 20. That is a dash is the interval from one noon to the next noon. इसे मतलब एक दोपहर से दूसरी दोपहर तक का जो टाइम होगा उससे उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, मीन सोलर डे, लूनार डे और द डे. तो इसका आंसर होगा हमारा सोलर डे. ठीक है, सो इट इज सोलर डे, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो इसका आंसर तो आप कई बार आ चुका है क्वेश्चन. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following quantities is expressed as force per unit area? वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी. हमको पता होता है P इक्वल्स टू F अपॉन है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो हमारा प्रेशर इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 23. आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, न्यूटन, सेकेंड, पाउंड और किलोग्राम. तो इन यूनिट्स में कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है आपको बतानी है. न्यूटन, सेकेंड, पाउंड और किलोग्राम. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेल्फ अटेम्प्ट है. आप लोगों को खुद देखना है कि इसका आंसर क्या होगा. एक ऑप्शन सही है या दो ऑप्शन सही हैं या फिर सारे के सारे सही हैं या फिर सारे के सारे गलत हैं. आपको खुद चेक करना है. इट इज सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन. सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 24 है. टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड मास, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम एंड ऑप्शन फोर्थ इज नन ऑफ दीज. तो आपको पता है कि टेम्परेचर तो हमारी खुद एक फंडामेंटल यूनिट है. ठीक है, सॉरी क्वांटिटी है. सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेराइव्ड यूनिट. इनमें से कौन सा डेराइव्ड यूनिट नहीं है. जूल, आर्ग, डाइन और मोल. हमको पता है मोल हमारा डेराइव्ड यूनिट नहीं है, वो फंडामेंटल यूनिट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज मोल. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स. पहला है 25 मीटर सेकेंड लेंथ, सेकेंड है 30 किलोग्राम, थर्ड है हमारा 5 न्यूटन एंड नेक्स्ट है हमारा 10 न्यूटन. अब पहली बार जो 5 न्यूटन है वो हमारा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है. ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा वो 10 एन लिखा हुआ है. सो ऑप्शन डी करेक्ट है. मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ इस बारे में. ठीक है, ये हाउ टू राइट ऐसा यूनिट्स उसमें मैंने आप लोगों को बताया था. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 27. To measure the distance of planet from the method is used from the earth होता है, from the earth. Just a minute. From के बाद ही अर्थ होता है. From the earth, फिर कोमा था और फिर लिखा द मेथड इज यूज्ड. कौन सा? इको,
डायरेक्ट, पैरालैक्स और पैराडॉक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पैरालैक्स। इन सभी में पैरालैक्स बेटर होगा। Question number 28. The mass of a body depends only on number one temperature, number two pressure, number three quantity of matter contained in the body, and next is location of body from the observer. तो ये simple question है, that is quantity of matter contained in a body, यही इसका आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू, यूनिट्स जो क्लासीफाई की गई हैं हमारी वो टू पार्ट्स में की गई हैं। ऑप्शन फोर है हमारा, सॉरी टू हमारा फोर पार्ट्स में की गई हैं, ऑप्शन सी हमारा फाइव पार्ट्स में की गई हैं, और ऑप्शन डी हमारा सिक्स पार्ट्स में की है। तो ये हमारा आंसर आएगा टू, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दो पार्ट्स में हमारी यूनिट क्लासीफाई की गई हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स। A set of fundamental and derived units is known as supplementary units। यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स गलत लिखा हुआ है। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नंबर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर थ्री कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स एंड नंबर फोर मीट्रिक यूनिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Question number 31. The physical quantity having the same unit in all the system of unit is length, time, mass and foot। तो हमको सिंपली पता है टाइम हमारा ऐसा क्वांटिटी है जिसकी सेम यूनिट है, चाहे एफपीएस में है वो भी सेकंड होती है, एमकेएस में भी सेकंड होती है, एसआई में भी सेकंड होती है, सीजीएस में भी सेकंड होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द एटॉमिक मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना आर द पार्ट्स ऑफ डैश डोमेन। बहुत ज़्यादा छोटी फिनोमेना है ये हमारी, तो ये मैक्रोस्कोपिक में रखी जाएंगी, माइक्रोस्कोपिक में, मेगास्कोपिक में या फिर इलेक्ट्रोस्कोपिक में। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। नैनो साइज ऑफ गोल्ड, हमको पता होता है गोल्ड का कलर बेसिकली येलो होता है हमारा, लेकिन नैनो साइज में यदि हम बात करें गोल्ड के पार्टिकल्स की बात करें, नैनो साइज ऑफ गोल्ड हैज़ डैश कलर। कैसा कलर होगा उसका? येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज। तो देखा जाए तो उसका पिंकिश टू रेड होता है हमारा, तो इसमें हमारा पिंक बेटर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पिंक। डिपेंड करता है उसमें भी हमारा वॉयलेट कलर से स्टार्टिंग हो जाता है वेरिएशन होना, और फिर हमारा रेड इस टाइप से होता हुआ जाता है, और फाइनली पिंक में चला जाता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेट टू, फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्थ है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, which of the following is not a characteristic of good unit? First option, it is invariable, second is it is reproducible, थर्ड इज इट इज़ पेरिशेबल एंड फोर्थ इज इट इज़ इजीली अवेलेबल। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ बंच, हैव अ लवली डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वंडरफुल डे once again.